Hi there, welcome to the Sunday edition of This Is Exclusive, in which we are going to get you a big one. An interview with Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis on the manner in which they are going after the mission of making India Naxals and Maoists free by early next year, possibly even before that. How the Maharashtra government, like in the case of Chhattisgarh government, like in the case of Andhra government, like in the case of Odisha government, are focused, mission focused on making sure that we are red terror free. That's going to be our big focus and exclusive. Let me get you the headlines first. Massive blowback to red extremism in Maharashtra's Gadchiroli. Maoist centers and cadres surrender, turning a new leaf. Mega exclusive on the show tonight. Day 3 of escalation in hostilities between Iran and Israel. Israel strikes Iranian nuke sites and Defense Ministry headquarters. Prime Minister arrives in Cyprus as a part of three-nation tour set to head to Canada soon for G7 summit. Tragic bridge collapse in Pune, at least 20-25 tourists feared swept away, while 5 have been confirmed dead. Relief ops underway. Ladies and gentlemen, this is a story that echoes through the jungles of central India and reverberates with the hopes of a nation long haunted by the crimson shadow of extremism. For decades, the dense forests of Gadchiroli in Maharashtra have been a battleground, not just of bullets and blood, but of ideologies. It was here that the Maoist insurgency found fertile ground. But now something extraordinary is unfolding. In a symbolic and strategic blow to the outlawed Maoist movement, 12 top Maoist cadres with bounties exceeding 1 crore rupees have surrendered, choosing peace over violence, life over death, ballots over bullets. This is not just a shift in strategy, it's a shift in spirit. Vimla Chandra Sidam. A former Maoist surrendered earlier this year. It began a wave of change. आपने सरेंडर क्या सोच के किया? हम सोच के बोले तो हम वो पहले सोचा बोले तो तबीयत अच्छा नहीं है। हमारी उम्र हो गई, उम्र हो गया, तबीयत लड़ नहीं सकते। तबीयत भी अच्छा नहीं है। तो सोचा जाने का तो अच्छा होते उधर जाके। अभी हम कम वो तो कम ये तबीयत उम्र बारे में आया, उम्र के बारे में आया, इधर सिलेंडर हो के बचेंगे बोल के आया। अगर विकास हो जाता है तो लोग को सरेंडर कर देना चाहिए, आपको लगता है? ये लड़ाई बंद हो जानी चाहिए। उसका तो हम लड़ाई बंद होते नहीं होते हम बता नहीं सकते। हम इधर आके सिलेंडर करके हम जीना आदर ऐसा जीना बोल के आया हम। The option of coming out of the shadow of violence and blood has brought many more like Vimla to surrender.
मैं वो समय छोटी थी, 14-15 साल उम्र था। वही समय अपने लोग आते थे तो गाना गाते थे, मीटिंग करते थे। वो मीटिंग यानी अभी गिरधर भैया बताए वैसे ही गार लोगों का और महिला लोगों का अत्याचार कैसा रहता है अपना देश में, महिलाओं को कैसा देखा जाता है। और कुछ महिला लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जाना, ऐसा वो सब कुछ मीटिंग में बताते थे। वो सब सुनकर मैं भी गाना भी मीटिंग भी सुनकर आकर्षित होकर चली गई। मैं तो 12 बोर भी पकड़ी, पहले आई तब पहले एयरगन दिए थे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद 12 बोर, 12 बोर के बाद और बीच में एटम दिए थे। उसके बाद राइफल 3 उसके बाद इंसास के बाद एक ही। 12 brainwashed Maoist terrorists looking for an alternative where they can leave their past behind. In front of Maharashtra government, they laid down their arms. उम्र क्या थी जब आप गई थी? 13-14। हाँ। तो उसमें आपको किसी ने जबरदस्ती भेजा था या किसी ने उठा लिया था या आप अपने मर्जी से गई थी? नहीं, मैं मर्जी से गई। अभी लड़ना है ना, जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है करके ऐसा। आपको लगता है कि ये जो जीवन है जो अभी आप जी रही हैं, जो लाइफ अभी आपकी है, वो लाइफ अच्छी है या वो लाइफ जो आप पार्टी के साथ गुजारती थी? वो भी अच्छे, ये भी अच्छे। कहाँ भी वो लड़ाई में देखने से वो भी अच्छा है, लेकिन अभी लेकिन उसमें तो जान का खतरा है, उसमें लोगों को मारना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। उधर तो मरता है ना, अभी दिन भर एनकाउंटर होता है, इसलिए मारना पड़ता है। वो मारना ही पड़ता है, इसलिए अभी सिलेंडर हुआ मैं। These are the C60 commandos who are the Maharashtra's elite anti-Naxal unit trained to fight in the very terrain that shelters the insurgents. Formed in 1990, the C60 unit is made up of local youth, in fact toughened by the terrain, emotionally connected to the soil and fiercely committed to ending Naxal terror. These are not the stories to be seen in isolation. These are part of a wave of change, a step towards the end of Red Terror. That gives you some idea of the kind of security swoop down happening in these Naxal and Maoist infested territories across the country. This was a report from Gadchiroli, and that brings me to the exclusive. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis spoke to senior editor Shawan Sen. This is exclusive, is a very, very special guest, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, a man who has been spearheading his government's campaign to combat Red Terror. Devendra Fadnavis, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की मुहिम है 2026 तक माओवाद खत्म करना है। इसी में आपके एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। इतिहास बनाते हुए आप गढ़चिरौली गए और 1 करोड़ के इनाम वाले 12 खतरनाक माओइस्ट का सरेंडर आपके देखरेख में हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नक्सलवाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ महाराष्ट्र में हमने लड़ाई लड़ी है, इसके कारण माओवादियों की कमर टूटी है। आज हम देख सकते हैं कि अब महाराष्ट्र में धीरे धीरे जो एक्टिव कैडर है उसका नंबर बहुत थोड़ा रह गया है, क्योंकि पिछले 10 सालों में या तो हमने माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है या अरेस्ट किया है, या फिर इस प्रकार की परिस्थिति उनके ऊपर आई है कि उनको अब सरेंडर करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा जिस सरेंडर की आप बात कर रहे हैं उससे पहले भी एक सरेंडर हुआ था, उसके पहले भी एक सरेंडर हुआ था। तो लगातार माओवादियों के ध्यान में आ रहा है कि अब
वे लड़ नहीं सकते। उनको ये भी ध्यान में आ रहा है कि जिस चीज के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की थी वो तो चीज है ही नहीं। एक प्रकार से उनको दिग्भ्रमित किया गया, उनका इस्तेमाल किया गया। इसलिए बड़े बड़े केडर्स भी 20-20 साल के माओवाद के बाद, अनेकों ऑपरेशन करने के बाद आज सरेंडर कर रहे हैं। इसी सीरीज में ये जो सरेंडर आप कह रहे हैं, ये सरेंडर हुआ था, जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा इनाम था। ऐसे 13 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अब जो माओवादी बचे हैं उनके सामने इतना ही रास्ता बचता है कि या तो वो आत्मसमर्पण कर दे या फिर हम उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और मेरा विश्वास है कि अब इतने कम संख्या में वो बचे हैं, वो तो अबू जमाड़ के जंगल में जाकर छुप जाते हैं, कोई ऑपरेशन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक डेडलाइन तय की है कि मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त करना है, महाराष्ट्र में तो हम अभी उस कगार पर खड़े हैं। इसमें सबसे महत्व की बात यह है कि जो पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर हमारी सीमा से एक बहुत लंबे समय तक एक जंगल लगता है जहां पर ये लोग छुपते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह था कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार थी, इसने एक प्रकार से उनको खुली छूट दे दी थी। इसलिए बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में रिक्रूटमेंट हुआ। लेकिन मुझे खुशी है कि नई सरकार बीजेपी की छत्तीसगढ़ में आई, तब से छत्तीसगढ़ ने इतने ऑपरेशंस इंटेंसिफाई किए हैं कि जिसके कारण एक तरफ से हमने उनको खदेड़ा है, दूसरी तरफ से छत्तीसगढ़ उनको घेराबंदी बना रहा है। तो मुझे विश्वास है कि अब ये जो एक्टिव कार्डर्स है इनका अंत बहुत नजदीक है। आप महाराष्ट्र के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री बने जो अबूझमार जैसे खतरनाक इलाकों में गए। कैसा रहा आपका अनुभव? क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश बिल्कुल क्लियर है। भारत का राज चलेगा, भारत के संविधान का राज चलेगा, संवैधानिक संस्थाओं का राज चलेगा। यहां पर कोई भी असंवैधानिक तत्व अपना राज नहीं चला सकते। यही संदेश देने का मैंने प्रयास किया है। और मैंने एक प्रकार से सारी दुनिया को यह बताया है कि जिस प्रकार से माओवादी लिबरेटेड जोन तैयार करते थे, यानी जहां उनका राज चलता था, अब वो लिबरेटेड जोन तो है, लेकिन भारत के संविधान के तहत जो हमारी संस्थाएं, उन संस्थाओं के लिए वो लिबरेटेड जोन है, आम आदमी के लिए वो लिबरेटेड जोन है, वहां के गांव गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए लिबरेटेड जोन है। और कोई भी उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस प्रकार से अब भारत के संविधान को स्थापित करने का काम इस पूरे इलाके में हमने कर दिया है। जिस तरह के आउटपोस्ट सरकार ने कावंडे गांव में बनाया है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की माओवाद खत्म करने में क्या अहमियत होती है और ऐसे में सिक्योरिटी ऑपरेशंस की क्या भूमिका रहती है? देखिए, सिक्योरिटी ऑपरेशंस ये पहली कड़ी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि माओवादी अपना राज तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के संविधान ने तैयार की हुई संस्थाओं को हम नहीं मानते, हमारा राज यहां चलता है। और उसको लिबरेटेड जोन के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एक पुलिस आउटपोस्ट वहां पर खुलता है तो उसके कारण संवैधानिक संस्थाओं की एक प्रकार से वहां पर पहचान तैयार होती है, वे वहां पर स्थापित होते हैं। और गढ़चिरौली में हम लोगों ने पहले से एक कार्यप्रणाली ऐसी रखी कि जिसके तहत हमारा पुलिस आउटपोस्ट, ये केवल पुलिस आउटपोस्ट नहीं होता है, वो पूरी सरकार होती है। हमारे पुलिस वहां पुलिस दादा लोरा खिड़की इस नाम से एक उपक्रम चलाते हैं, जिसमें पुलिस जो हमारा रेवेन्यू प्रशासन है उसके सारे काम इसी आउटपोस्ट से चलाते हैं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं वहां से दी जाती है। जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं होती है वो सीधे उनको मिलती है। तो उसके कारण पुलिस प्रशासन और
हमारे जो नागरिक है इनकी एक दोस्ती तैयार होती है, इनका एक रिश्ता तैयार होता है भारत के संविधान के प्रति और संविधान के तहत चुनी हुई सरकार के प्रति, हमारे लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आउटपोस्ट ये पहली कड़ी होती है और आउटपोस्ट जब तैयार होता है तो वहां पर विकास के कार्य करना भी आसान होता है। जैसे ही आउटपोस्ट हम लोग तैयार करते, हम रास्ता बनाते, पुलिया बनाते, वहां पर हम 4G का टावर तैयार करते, सारे प्रकार की कनेक्टिविटी वहां पहुंचती है। वहां पर हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं खड़ी होती है, हमारी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है वहां चली जाती है। तो एक प्रकार से ये जो सुदूर इलाका है, इस इलाके के लोगों को भी वही फायदे मिलते हैं जो फायदे अन्य गांव के लोगों को मिलते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक डेडलाइन है 2026 तक माओवाद खत्म करने की। इसको पूरा करने के लिए और क्या बड़े कदम आपकी सरकार उठाएंगी? देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा कि अब महाराष्ट्र में बिल्कुल थोड़े से एक्टिव काडर बचे हैं जिसको हम लोग एक प्रकार से या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे या फिर उनका आत्मसमर्पण होगा। और इसमें बड़ी मदद हमको छत्तीसगढ़ की ओर से चाहिए। वहां पर भी छत्तीसगढ़ की पुलिस और जो हमारे केंद्र सरकार के फोर्सेस है उसी प्रकार का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे तो ये दिखता है कि हम लोग इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन गढ़चिरौली के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान भी हम लोगों ने शुरू किया। विशेष रूप से गढ़चिरौली ये देश का स्टील हब बन सकता है। देश का सबसे अच्छा आयरन ओर ये गढ़चिरौली में है। हमने 2016-17 में वहां पर माइनिंग शुरू की और आज परिस्थिति ऐसी है कि गढ़चिरौली में हम लोगों ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOUs किए हैं और करीब 50,000 करोड़ का काम शुरू है। और हमारा पहला स्टील प्लांट उसका उद्घाटन भी वहां पर हुआ है और दूसरे का उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जो गढ़चिरौली केवल माओवाद के लिए जाना जाता था, अब वो स्टील हब के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर इसमें से रोजगार मिल रहा है। उसके कारण वो माओवादियों का साथ नहीं देते, वो हमारा साथ दे रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, हमारे संवैधानिक संस्थाओं का साथ दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नए उद्योग शुरू हुए हैं इसमें आत्मसमर्पित जो नक्सलवादी है या माओवादी है उनको भी प्रशिक्षित करके अच्छी नौकरियां दी गई है, जिसके कारण वो अच्छा संसार अपना बैठा पाए। और अभी अभी हम लोगों ने आत्मसमर्पित जो माओवादी थे उनके शादियों का भी एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक और अब माओवाद समाप्त हो रहा है और दूसरी ओर गढ़चिरौली को स्टील हब ऑफ इंडिया के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। Well, thank you very much, Mr. Fadnavis, for joining us. In fact, this was the first interview of the Chief Minister after his successful visit to the Maoist-hit areas. Gadchiroli becoming, or possibly becoming a steel hub of India is what Devendra Fadnavis said towards the end. In fact, our team there in Gadchiroli caught up with the Superintendent of Police of the district. Listen into that sentiment on the ground. क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और क्या कारण है कि यह जिला जो है, जो सबसे पिछड़ा जिला हुआ करता था, अब मेन स्ट्रीम की तरफ आ रहा है? पिछले कुछ वर्षों में, 8-10 वर्षों में जो गढ़चिरौली पुलिस की तरफ से माओवाद विरुद्ध लड़ाई में जो काम हुई है और जो हमने नए जो बदलाव के मुख्य कारण ये हैं कि लोगों की जो विश्वास कि माओवाद प्रभावित जिला नहीं होकर के ये मेन स्ट्रीम की तरफ बढ़ रहा है और माओवादी जिस बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं या जिस बड़ी संख्या में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो गढ़चिरौली की पहले इमेज थी कि माओवाद प्रभावित जिला है, उससे बाहर निकल करके अभी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इम्प्रूव हो रही है, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। और उसके लिए हमने 2 प्रोंग स्ट्रेटजी यूज़ की। एक तो नक्सल विरोधी अभियान को हमने तीव्र और किया और दूसरा लोग को
मेन स्ट्रीम करने के लिए, जो ट्राइबल लोगों का विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स जिसको हम बोलते हैं, वो करने के लिए हमने सिविक एक्शन फ्रंट पे भी काम किया। सर, अगर बात करें कि शहर को गांव से जोड़ने की जो प्रक्रिया है या जो देहात जिसको कहते हैं, वहां पर बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, ये व्यवस्था जो पहुंचाने की प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंची है? और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप कहां तक उनको एजुकेट कर पा रहे हैं कि हम आपके हैं और वो जो नक्सल हैं वो एक एंटी सोशल एलिमेंट है, तो ये प्रक्रिया जो है वो कहां तक पहुंची है? काफ़ी तेज़ी से इस प्रक्रिया में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। जैसे RCPLW स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, गृह मंत्रालय की, उसके तहत पिछले 5 साल में गढ़चिरौली में लगभग 400 किलोमीटर के रोड्स बने और लगभग 70 ब्रिजेस बने, जो गांव साल के 6 महीने के लिए गढ़चिरौली से कट जाते थे और उनका संपर्क केवल छत्तीसगढ़ से रहता था। ऐसे सभी गांव महाराष्ट्र से अटैच हो गए हैं और इसके कारण लोगों का उनके तहसील प्लेसेस से संपर्क बढ़ा है। हमारी जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है, पुलिस दादा लोरा खिड़की और प्रोजेक्ट उड़ान, उसके अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या यहाँ सुरक्षा की थी। सुरक्षा नहीं होने के कारण बाकी यंत्रणा सरकार की वहाँ पहुँच नहीं पाती थी, तो हमने हर जगह पे ऐसे पुलिस आउटपोस्ट खोले जिसके कारण उस एरिया में सुरक्षा बढ़ी और वहाँ पे फिर हमारी सिविक एक्शन और कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत हमने वहाँ पे एक सिंगल विंडो सिस्टम सेटअप किया। 21 से जो एक्शंस आप लोगों के हैं उसमें मेजर ऑपरेशंस अगर आप उसका जिक्र करें और बताएं कि कितने ड्रेडली नक्सलवादियों को पकड़ा है आपने और वो उनके अगर आप डिटेल्स शेयर करें। गढ़चिरौली के इतिहास में, माओवाद विरुद्ध इतिहास में 2 बड़े इनकाउंटर्स, मैं बोलूं तो 3 बड़े इनकाउंटर जो एक मील का पत्थर साबित होते हैं। उसमें सबसे पहले 2018 में एक बोरिया कसनासुर में एक ये हुआ था, जो अभी कुछ दिन पहले तक नक्सल विरोधी अभियान में देश का सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ करता था, जिसमें हमने 40 माओवादियों को 2018 में मार गिराया था। उसके बाद 2021 में 13 नवंबर 2021 को एक छत्तीसगढ़ सीमा पर एक इनकाउंटर हुई जिसमें 27 माओवादियों को मार गिराने में हमारी C60 को सफलता मिली। इसके बाद 2024 में भीषण बरसात के समय हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और जिसमें 6 नदी नाले को क्रॉस करके बारिश होते हुए हमने एक ऑपरेशन गढ़चिरौली कांकेर बॉर्डर पर डाला, जिसमें हमने 12 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया। ये 3 ऑपरेशंस के कारण और ये 12 माओवादियों के न्यूट्रलाइज होने के कारण नॉर्थ गढ़चिरौली आज के डेट में माओवाद प्रभाव से मुक्त हो गया है। ऐसा क्या आप लोग कर रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में लोग आकर के सरेंडर कर रहे हैं? कौन सी नस आपने जो है वो नक्सलियों की दबा दी है? सरेंडर वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास पर्याय कुछ बचा नहीं। जिस तरह से हमारी नक्सल विरोधी अभियान चल रहे थे, जिस तरह से बड़ी संख्या में माओवादी न्यूट्रलाइज हो रहे थे गढ़चिरौली के, और हमारी जो सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है महाराष्ट्र शासन की 2014 की, वो बहुत ही अट्रैक्टिव एक पॉलिसी है जिसमें हम कैश कंपोनेंट एज ए अवार्ड भी देते हैं। उसके अलावा हम इन्हें एक भूखंड, एक जमीन का टुकड़ा भी देते हैं जिसके ऊपर वो अपना घर बना सकते हैं। गढ़चिरौली जैसे शहर में उनकी एक अलग से कॉलोनी है जिसमें सभी सरेंडर्ड माओविस्ट रह रहे हैं। उनकी रोजगार और स्वयं रोजगार की संधि भी गढ़चिरौली पुलिस उनको उपलब्ध करा करके दे रही है। From home to some international focus now. Tensions in the Middle East or West Asia are once again flaring up, this time amid a growing confrontation between Iran and Israel. The escalating conflict has sparked serious concerns for foreign nationals in the region, including thousands of Indians residing in Iran. In the light of the deteriorating security situation, the Indian embassy in Tehran has issued a high-priority advisory urging all Indian citizens to remain in close contact with the mission. They have issued numbers also on which those Indians stuck there can contact the mission staff. Now, the point to remember is that Iran and Israel have escalated hostilities with back-to-back missile strikes, after which Netanyahu warned that Tehran will burn, even as the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, said that Israel would pay a dear price. And it's been 3 days now that these missile strikes from both the sides have been targeting each other's territory. And in fact, reports suggest that almost entire top leadership of the Iranian military, or a significant proportion of their military leadership, has been decimated, taken down, and nuclear installations hit. We are going to be joined in by a former major of the Israeli Defense Forces, Dan Pfefferman. In fact, he's there with us.
Welcome, Dan. And how long before you could say that Israel has achieved its military objectives, that whatever nuclear installations that had to be targeted have been taken down, and that the de-escalation can happen? Yeah, thanks for having me on. It's going to be a while. The IDF and the Israeli government is reporting not days, but possibly weeks before the goals of this operation are achieved. But as the Prime Minister and the government has announced, it's not realistic, nor do we think in Israel it's realistic that we'll completely dismantle and completely neutralize Iran's nuclear and ballistic missile programs. Rather, what we're going for is a significant delay in these programs. Of course, as we know, and certainly here in Israel, but from international experience with rogue regimes and nuclear programs, especially since Iran has the domestic scientific know-how, what we need to hope for is a diplomatic solution in which Iran agrees to dismantle its program and not seek to achieve a nuclear weapons capability. The military aspect was really a last resort after all diplomatic options led by the United States had failed, and after Iran has been attacking, whether directly or indirectly, Israel with its proxies, with its missiles, and directly with 300 ballistic missiles itself on 2 different occasions, had been attacking Israel and threatening its destruction for the last 600 days since the October 7th attack. Of course, it was behind the October 7th attack as well. And so we were left with no choice but to preemptively go after Iran's nuclear program, and hopefully will achieve a significant delay. Okay, and any chance of the United Kingdom or the United States joining directly militarily, given the fact that the UK has sent in its fighter aircrafts to the region? The only way I can see the United States, the UK, or other major powers joining directly is if their own interests, embassies or forces or bases are hit in the region. The United States has made this quite clearly, and I think President Trump ran on a ticket of disengaging from direct military affairs in the Middle East unless they harm American interests. So unless American bases or American interests are attacked directly, I think what we're going to continue to see from the United States is diplomatic support, intelligence support, and other kinds of forms of indirect support for Israel achieving these goals. With the UK and certainly the current leadership in the UK, I would say even more so. It's hard to see them getting involved unless direct UK interests are hit. That said, I think it is imperative on the entire international community who want to see stability and peace in the region to support Israel's efforts. Israel is really doing this on behalf of the entire civilized world, taking out the most dangerous regime in the world that was days away, reportedly, from achieving nuclear weapons capacity and was rushing towards it in the entire 60 days that the United States was in advanced negotiations with the regime in Tehran. Right. Thank you, Dan, for joining us. So hopefully the military objectives would be achieved sooner than later, and then we would have some de-escalation happening in the region. Thank you so much for joining us, Dan Pfefferman, there, former major of the Israeli Defense Forces. And with this, we come to an end of this broadcast. Friends, a short break. On the other side, get me right.